Hello everyone, welcome to the Rule of Crown, and it is Indian Council Act 1861 that we are going to cover. And why did I call welcome to the Rule of Crown? Because this is perhaps first act that you have after Crown assumes the charge, right? So this was one thing. Second thing is that next two acts post this act 1861, that is Indian Council Act of 1892 and Indian Council Act of 1909. So remember the prefix, these acts will not be called now Charter Act, it will be called Indian Council Act. So you have three acts now, Indian Council Act of 1861, Indian Council Act of 1892 and Indian Council Act of 1909. So all three acts will be called Indian Council Act because most of the provisions that we will discuss will center around reforms either in Legislative Council or Executive Council. So this is the introduction of this act, and actually the provisions that you will see, this is the pending reform of 1858. So whatever provision that we are going to discuss, perhaps that should have been part of 1858 Good Government of India Act itself, but because that particular act was hastily designed, and so they did not think of this provision, insertion of this provision in that act. And also if you concentrate, British policies most of the time were reactive and not the proactive. उन्होंने एक पीस मील अप्रोच लिया जब भी इन रिफॉर्म्स और एक्ट्स की बात आई, जब पॉलिटिकल डिमांड या कोई पॉलिटिकल टर्मोइल जब तक नहीं होता था वो किसी तरह के रिफॉर्म में नहीं जाते थे, बिकॉज रिमेंबर दे आर कॉलोनियल रूलर्स, राइट। तो कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह के रूल से कि भाई उनका पर्पस रिफॉर्म था, उनका पर्पस सिर्फ इंडिया में सस्टेनेंस था कि किसी तरह हम सस्टेन करें, एंड ओनली व्हेन दे आर पुश टू द वॉल तब वो रिफॉर्म्स लाते हैं। सो लेट अस वेलकम यू टू Indian Council Act of 1861 and it is in this context, right, कि ये एक्ट आपके पास Indian Council Act 1861. So जैसा मैंने पहले बताया कि भाई काउंसिल एक्ट्स है, so it will center around reforms in both the council, legislative और executive council. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इज दैट दिस एक्ट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एक्चुअली अगेन माइंड यू कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का वर्ड कहीं भी ऑफिशियली इस एक्ट में नहीं यूज किया गया है, दिस इज मियर आर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, आप एक एरो का साइन देखेंगे जो डिनोट कर रहा है कि इन दोनों की प्रेसिडेंसीज ये दोनों हुआ करती थी, राइट। तो इनकी पावर को अप कर दिया जाता है एंड बाद में रीस्टोर लिखा गया है। तो दिस अगर रीस्टोर हुआ है अब means somewhere in through some act their power had been divested, right. So linkages बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही रिस्टोर्ड आया है यहाँ स्क्रीन पे, राइट, आपके माइंड में पॉपअप होना चाहिए था कि when were they divested of these powers, right. So 1833, if you remember, we were discussing that divestment of power, legislative powers from these two presidencies, and now they are being given back that power is being restored, and that's why I'm calling this act of decentralization. So this is completely our assessment that this act will be called decentralization because it is giving back, it is restoring the powers, right. Second provision that is there, right. So fifth member as finance minister is added to Viceroy Executive Council. Fifth member means when was fourth member added? If you remember 1853 Act, fourth member was added in 1853 and 1833 में आप जाओगे तो fourth member actually 1833 में ही ऐड कर दिया गया था, but that was only by invitation. Permanently जो fourth member का addition होता है वो होता है आपके 1853 के एक्ट में, राइट। एंड नाउ फिफ्थ मेंबर इज बीइंग एडेड टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जैसे ही फिफ्थ मेंबर आया, मैंने आपसे फोर्थ मेंबर डिस्कस किया, नाउ आपका माइंड एकदम से 7084 वाले एक्ट में जाना चाहिए जिसमें 3 मेंबर्स थे, एंड फिर अगेन 7073 में जाना चाहिए जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे। तो इवोल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड अगेन लिंकेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जब भी आप एक्ट्स को कवर कर रहे हैं, एक्ट्स को एक कंटिन्यूटी में कवर करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक्ट्स जो हैं ये पीस मील रिफॉर्म अप्रोच है ऑफ ब्रिटिश टूवर्ड्स इंडियन,
ठीक है। तो कभी किसी एक्ट में कुछ होता है, फिर से डिमांड आती है तो थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट होता है, फिर से डिमांड आएगी तो थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट, ये करते जाएंगे। तो समवेयर दीज एक्ट्स आर लिंक्ड इनटू इटसेल्फ। तो जब भी आप एक्ट्स को कवर करते हैं, अगेन मेरी यही सजेशन होगी कि आप एक्ट्स को कंटिन्यूटी में कवर करें रादर देन आइसोलेशन, कि अभी ओके एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं उसमें 1858 के बारे में है तो चलो 1858 पढ़ लेते हैं, एज्यूमिंग कि मुझे बाकी सारी चीजें आती हैं। ओके 7084 के बारे में पूछा गया, चलो 7084 पढ़ लेते हैं, ठीक है, एज्यूमिंग कि मुझे बाकी सारी चीजें आती है। तो ये अप्रोच ना अपनाएं। जब भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें, उन एक्ट्स को कंटिन्यूटी में पढ़ें, ठीक है। Now jumping back again to the provisions of this act, and now we will discuss the third provision of this act, and third provision ये है थोड़ा सा लंबा है, and this it calls emergence of representative institution. So representative institution क्या है? Actually वायसरॉय को पावर्स दी जाती है कि वो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एंड माइंड यू जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, जो ये स्लाइड्स पे वर्ड्स दिए गए हैं, राइट, ये वर्ड्स एग्जैक्टली वर्बैटम आपको याद करने हैं, बिकॉज दिस स्लाइड्स इज नथिंग बट द नोट्स, और इससे आप कंसेशन नहीं ले सकते इन स्लाइड से कि इसमें से कोई भी वर्ड मैं ओमिट करूं, क्योंकि जितना शॉर्ट फॉर्म में हो सकता था, आई ऑलरेडी हैव मेड दिस स्लाइड इनटू शॉर्ट फॉर्मेट, जहां ये देखिए एरो का निशान मैं लगा सकता था वर्ड को रिड्यूस करने के लिए, मैंने एरो का निशान लगाया है, राइट। तो आप एटलीस्ट इन एक्ट्स को यहां से कवर करते वक्त इसको कॉन्साइज करने की कोशिश मत कीजिएगा, राइट। तो यहां जो भी वर्ड लिखे हुए हैं एटलीस्ट उसे बाय हार्ट आप याद करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है। सो अगेन आई एम रीडिंग द थर्ड प्रोविजन, emergence of representative institution it is talking about, and it is saying Viceroy was empowered to nominate 6 to 12 additional members in legislative council, right. तो 12 member you already had until 1853 act, now 6 to 12 additional members is being suggested to be added by Viceroy, right, in legislative council, ठीक है, of which half of to be non official members। और ये जो 6 से 12 members एड लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय, एंड ये जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है तो ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात अभी नहीं हो रही इस एक्ट में। हम आगे देखेंगे कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ इंप्रूवमेंट नेक्स्ट एक्ट्स में होंगे, लेकिन अभी ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, राइट। तो वॉइसरॉय को ये पावर दी जाती है कि वो नॉमिनेट कर सकता है, एंड माइंड यू अगेन मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं कि वो नॉमिनेट कर सकता है, इलेक्शन की बात अभी भी नहीं आई है। सो वॉइसरॉय इज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट 6 to 12 एडिशनल मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और हाफ ऑफ उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जो भी जितने भी, अगर वो 8 चूज करता है, 8 नॉमिनेट करता है, राइट, तो 4 विल बी नॉन ऑफिशियल। ये ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल का जो डिफरेंशिएशन है, राइट, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, इसी एक्ट के नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क होता है ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। नाउ नेक्स्ट लाइन, इन दिस लाइन 3 इंडियंस टू लॉर्ड कैनिंग्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। सो इस एक्ट को इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट देयर आर 3 इंडियंस दैट आर बीइंग नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ लॉर्ड कैनिंग, और वो 3 मेंबर्स कौन कौन से हैं? राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव एंड महाराजा ऑफ पटियाला, राइट। सो 3 इंडियंस इस एक्ट के परसुएंस में नॉमिनेट किए जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एंड आई एम कंटिन्यूअसली एम्फेसाइजिंग, अंडरस्टैंड ग्रेविटी ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। तो वन मोर थिंग, अभी देखिए, अभी 3 इंडियंस आर बीइंग एडेड टू 3 इंडियंस एक्चुअली इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। 1853 में भी बात की गई थी लोकल रिप्रेजेंटेशन की, बट उस टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन बोला गया था कि 4 प्रेसिडेंसी जो है, आगरा, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, वो लोकली रिप्रेजेंट करके देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट वहां लोकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग इंडियन नहीं था, राइट। वहां लोकल रिप्रेजेंटेशन इट्स जस्ट कि वो प्रेसिडेंसी जो है वो इलेक्ट करके, नॉमिनेट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय को हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। बट यहां इंडियंस को नॉमिनेट किया जा रहा है। सो दिस इज परहैप्स फर्स्ट टाइम व्हेन any Indian, rather 3 Indians is being added to the legislative council of Viceroy, right. So this is third provision. I hope you do have clarity on these
three things. Now we will move to the fourth provision of this act. Not fourth provision, एक्चुअली ये देखें आप, यहां मैंने लेजिस्लेटिव तो लिखा है और साथ में एग्जीक्यूटिव को काट दिया है, स्ट्राइक आउट कर दिया है, राइट. इट्स जस्ट कि आपको बताने के लिए कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्क होता है, ठीक है. और ये जो रिफॉर्म हो रहे हैं, ये थर्ड प्रोविजन है, इट इज टॉकिंग अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड नॉट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट. आई होप यू कैन सी, ठीक है. और इससे एक कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है कि यहां तो इस एक्ट के थ्रू तो 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया जा रहा है, बट 1919 का एक एक्ट आएगा जिसमें 3 इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिलेगी, राइट. तो 3 इंडियंस यहां, 3 इंडियंस यहां, एंड आई हैव सीन माय फेलो एस्पिरेंट्स, राइट, मिस्टेकिंग दीज थिंग्स. इसलिए ये चूंकि यहां भी 3 इंडियंस और यहां भी 3 इंडियंस, तो वो मिस्टेक कर देते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्क नहीं कर पाते, ठीक है, और इन दोनों को रिप्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है. तो इसीलिए ये कनेक्टेड इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने डाल दी. इस एक बार फिर से पढ़ेंगे. 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया जाता है थ्रू दिस एक्ट, राइट. और 3 इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कब ऐड किया जाएगा? 1919 के एक्ट में, राइट. So I hope you do have clarity on this provision. Now we are moving to fourth provision of this act, right? And the fourth provision is that it talks about creation of legislative council for 2 provinces, that is called Bengal and Northwestern provinces. ठीक है. So fourth provision I hope you do have clarity on, सीधा था. Fifth provision is that ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया जाता है किस चीज को? पोर्टफोलियो सिस्टम को. यहां एक इंफॉर्मेशन एडिशनल जो है वो मैं दूंगा. पोर्टफोलियो सिस्टम वाज ऑलरेडी इन ऑपरेशन फ्रॉम 1859 बाय लॉर्ड कैनिंग. वो ऑलरेडी अनऑफिशियली इसको चला रहे थे, पोर्टफोलियो सिस्टम को. आई होप यू डू हैव क्लैरिटी अगेन ऑन कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है. आज जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं मोस्टली उनका एरिया डिवाइड है. राजनाथ सिंह जी डिफेंस देख रहे हैं, यू हैव होम मिनिस्टर डिफरेंटली, यू हैव WCD मिनिस्टर, यू हैव सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री. तो ये सब क्या है? पोर्टफोलियोज, राइट. डिफरेंट मिनिस्टर्स को असाइन कर दिए गए कि दिस इज द एरिया, इन दिस एरिया यू विल लुक इनटू, इन दैट एरिया ही विल लुक इनटू, राइट. तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम का जो जेनेसिस है 1859 में ही, जैसा कि मैंने बताया कि लॉर्ड कैनिंग ले आते हैं अनऑफिशियली, एंड दिस एक्ट इज ओनली जस्ट पुटिंग अ स्टैंप ऑन टू दैट पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है. And through this portfolio system, right, not portfolio system, this act also empowers Viceroy to issue ordinances without legislative concurrence, right. Indian Legislative Council के concurrence के बिना भी Viceroy जो है वो ordinances I hope आपको पता होगा, राइट. आज भी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स के पास पावर हैं, राइट. एंड दिस इशूइंग ऑफ ऑर्डिनेंसेस का जो प्रैक्टिस है वो इसी एक्ट से ड्राइव होता है, ठीक है. सो दोनों चीजें क्लियर. आई होप कि 5th प्रोविजन पे भी आपको क्लियरिटी आ गई होगी, राइट. तो 2-3 चीजें जो मैं रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है. क्या क्या चीजें हैं? लास्ट पॉइंट से शुरू करते हैं. पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन इस एक्ट से होता है, राइट. ऑर्डिनेंस का इंट्रोडक्शन इस एक्ट से होता है. लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का इंट्रोडक्शन जो है वो इस एक्ट से होता है. 5th मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है. एंड पार्ट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज आर रिस्टोर्ड थ्रू दिस एक्ट, राइट. सो आई होप कि आपका रिवीजन हो गया होगा. दिस इज द मैन लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 के एक्ट के टाइम भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, रादर वॉइसरॉय हो गए थे. एंड इवन राइट नाउ ये वॉइसरॉय हैं, ठीक है. इस एक्ट को भी ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड and we will be discussing 6th provision of this act. And 6th provision is that Viceroy had power to overrule the legislative council. So कोई ऐसा एक्ट अगर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ला रही है जो कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी सॉ कि 3 इंडियंस को नॉमिनेट कर लिया गया है, राइट. सो समटाइम्स, ठीक है. अभी तो हालांकि ये इंडियंस जो हैं, जो दिनकर राव और महाराजा ऑफ पटियाला एंड ऑल दोज द थर्ड मेंबर, राइट, they belong to elite class and they used to be favorites of these British officials.
तो वो इंडियंस के इंटरेस्ट की तो हालांकि बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी मौके पे आखिर एट द एंड ऑफ डे दे आर इंडियंस, तो कभी भावनाएं जाग सकती हैं, राइट। तो हो सकता है कोई ऐसा एक्ट वो प्रपोज करें या फिर पास करवाने में, बिकॉज इवन इन अमंग ब्रिटिश एज वेल देयर वर फ्यू हु वर इंटरेस्टेड इन सर्विंग ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो ऐसा हो सकता है कि कोई लेजिस्लेशन इनिशिएट हो जाए और वो पास भी हो जाए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व ना कर रहा हो। सो व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? सो ब्रिटिश मोनार्क एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड नेवर लाइक, ठीक है, ये सब चीजें जो रिफॉर्म हो रही हैं, इट इज नॉट फ्रॉम देयर कॉन्सियंस, प्लीज अंडरस्टैंड, it is their compulsion, they are pushed, as I said ki they are being pushed to the wall, and that's why they are bringing this reforms in legislative or executive councils, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस का रूल चल रहा है, वहां बैलेंस थोड़ा सा किया आपने, लेकिन यहां थ्रू दिस प्रोविजन एंड थ्रू पावर ऑफ गिविंग ऑर्डिनेंस आप चेक कर रहे हो उस पावर्स को, हम पावर दे रहे हैं बट उसको चेक करके चलेंगे। सो दिस प्रोविजन इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ चेकिंग, राइट। तो वॉइसरॉय को पावर दी जाती है कि ऐसा कोई अगर लेजिस्लेशन आता है, पास भी हो जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर पास भी कर देती है, सो वी आर एम्पावरिंग यू टू ओवर रूल योर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अंडरस्टूड? क्लियर? इजी? So now we'll move to next point, and the next point is official and non-official members. So remember जब हम लोग third provision की बात कर रहे थे, right? So we used one word and that was nomination of few non-official members. So non-official members का actually मतलब था non-government members, right? And officials member were government members, right? So now we are moving to कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स की बॉडी का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो 70-73 में आप देखो देयर वर 4 मेंबर्स, राइट। 70-84 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का साइज रिड्यूस करके 3 मेंबर कर दिया जाता है। देन इन 1833 यू विल सी कि फिर से उसे 4 मेंबर बॉडी, बट दैट वाज नॉट बाय परमानेंट मेथड, दैट वाज जस्ट बाय इन्विटेशन। 1853 में फाइनली उस इन्विटेशन को परमानेंट मेंबर बनाया जाता है। देन 1861 जो कि ये एक्ट है, इसमें 5th मेंबर ऐड किया जाएगा, राइट। इन 1874 दैट आई शुड हैव इंक्लूडेड, 1874 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 6th मेंबर का एडिशन होता है। 1909 में फर्स्ट इंडियन को इंक्लूड किया जाता है, राइट। एंड 1919 में 3 इंडियंस आर बीइंग nominated to Viceroy Executive Council. So this is all about, I guess, 1861. अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि आई शुड हैव डिस्कस्ड इन लेंथ और डिस्कस्ड डीपली, या फिर कोई रह गया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई दैट. टिल देन, बाय बाय, थैंक यू.